Hello friends, this is Dr. Bijendra Jha and today I'll talk about union legislature. You know that government has three major organs, that is executive, legislature and judiciary. Now today I'll talk about union legislature, that called parliament. Union legislature, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट बोलते हैं इनको, but in different country this legislature has different name. Like in the US it is known as Congress, or in Maldives it's called Majlis. So अलग अलग नाम है. Now parliament is technically known as president in parliament. President in parliament. क्यों president in parliament? Why is it so? Because India adopted Westminster model of parliamentary democracy or British model of parliamentary democracy, where in Britain it is followed that what is that followed? Crown in parliament. ब्रिटेन में क्या फॉलो किया जाता है? क्राउन इन पार्लियामेंट. इन इंडिया वी फॉलो प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट. So president is not a member of the either of the house of the parliament, but very much integral part of the parliament. Right? I repeat, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउस के, लेकिन बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं. राइट? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रेसिडेंट एड्रेसेस the very first beginning of every newly elected, parliament. If you know that first parliament, the first parliament has been set up in 1952, right? That was the first parliament, right? First parliament was set up in 1952, and as you know that Rajya Sabha is a permanent body that is not subject to dissolution, but Lok Sabha is dissolved. Right? And then election takes place. Therefore, there are new parliament. Now you have, second parliament in 1957, just after 5 years. And the existing parliament today, right, that was formed in 1924, that is called 18th parliament we have. Right? 18th parliament we have, and that is formed in 2024. राइट नाउ आप देखेंगे कि हर पार्लियामेंट को शुरू होने से पहले द प्रेसिडेंट एड्रेसेस इट, एंड एवरी ईयर बिफोर बिगिनिंग ऑफ द बजट सेशन द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द हाउस. फर्दर इफ यू लुक एट, प्रेसिडेंट कैन समन द हाउस टू मीट एट ए टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स seems fit. President can dissolve the house, president can summon the house, president can prorogue the house. Then president, if you look at, can issue an ordinance when house is not in session. जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं, एंड दैट ऑर्डिनेंस इज एक्चुअली लॉ. राइट? दैट ऑर्डिनेंस हैज सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. उसकी इफेक्ट उसी तरह होती है जैसे पार्लियामेंट ने लॉ पास किया हुआ हो. राइट? फर्दर इफ यू लुक एट, देयर आर फ्यू बिल्स व्हिच कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लाइक मनी बिल. देन प्रेसिडेंट, इफ यू लुक एट, प्रेसिडेंट basically summon the house to go for joint sitting. Right? When the parliament passes a bill, it goes to the president to becomes an act. जब पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब वो लॉ बन पाता है. एंड फाइनली इफ यू लुक एट, as the UK parliamentary democracy follows crown in parliament, Indian parliament follows president in parliament. Thus president, right, is a very much integral part of the parliament. Now look at the other house, the two house we have in the parliament apart from the president. One is called Rajya Sabha
Rajya Sabha. This is also called Council of States. Council of States. Right? Now then you have Lok Sabha. Lok Sabha. Now Lok Sabha is called House of the People. That Lok Sabha, what Lok Sabha is called? Lok Sabha is called House of People. House of People or lower house. Lower house. While if you look at Rajya Sabha, Rajya Sabha is known as upper house. राज्य सभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं या फेडरल चैम्बर बोलते हैं. फेडरल चैम्बर. अच्छा, फेडरल चैम्बर क्यों बोलते हैं राज्यसभा को? बिकॉज राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द फेडरल यूनिट्स. इंडिया हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माय डियर, बट it has federal system of government. There are two layers of government, right? The union government and the state government. And the state government basically indirectly elect the members and send it to the Rajya Sabha, right? So therefore, if you look at the Rajya Sabha represents the interest of the federal units like Bihar, UP, Goa, Sikkim. Every states send their representative to the Rajya Sabha. So Rajya Sabha represents the interest of the states. Whereas if you look at the Lok Sabha represents the basically will of the people. Lok Sabha क्या represent करता है? Will of the people. Or particularly if I say we the people of India, जो preamble में है, we the people of India having solemnly constituted India into sovereign secular socialist democratic republic, उसी we of the people India को वो represent करता है, यानी कि वो popular sovereignty को represent करता है, right? किसको support करता है? We the people of India, people of India, या इसको हम कहते हैं popular sovereignty. Popular sovereignty, right? So Lok Sabha क्या है? Lok Sabha is the custodian of the will of the people. जो लोगों की इच्छा होगी लोक सभा वो काम करेगा, राइट? सो पर्टिकुलरली पूरा पार्लियामेंट को ही कस्टोडियन ऑफ द विल ऑफ द पीपल कहा जाता है, राइट? अगर आप एग्जीक्यूटिव को देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव इज द रीजन ऑफ द स्टेट. बेसिकली इट इंप्लीमेंट्स द लॉ. बट जब जहां तक आप जुडिशरी की बात करेंगे, जुडिशरी क्या करता है? इट मेंटेन्स रूल ऑफ लॉ, राइट? इट इज ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट जब आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो इट इज अ कस्टोडियन ऑफ द पीपल्स वेल, राइट? As I told you that Parliament has three major components, or it consists of Rajya Sabha, Lok Sabha, and the President. President is a very much integral part of the Parliament, right? As I told you already, Rajya Sabha is an upper house or also house of elders. बुढ़े लोग होते हैं राज्य सभा में, आपने देखा होगा, right? It is also called Council of States or Federal Chamber or upper house, right? Whereas the Lok Sabha is the house of the people, the house of the younger. Young लोग थोड़ा comparatively होते हैं, बुढ़े लोग भी होते हैं दो चार, right? और ज्यादा ही होते कुछ, right? Otherwise young लोग भी होते हैं यहाँ पर. वहां पर young लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पर comparatively ज्यादा मिलेंगे. Average age अगर आप निकालोगे तो. So that is a parliament, right? Now look at how we can define parliament first, right? So थोड़ा तो मैं तो composition बोला, you know, till now I talked about the composition of the parliament. Let me talk about how to define parliament.
how to define parliament, right? Just know the basic. First thing, you must recognize that parliament is a public institution. It is a public institution, right? Of what? Representation. Representation. What does it mean? The parliament is the highest institution of representation, right? If you look at the Lok Sabha, Lok Sabha represents the interest of the people at large. Lok Sabha also represents the various social classes like SC, ST, women, right? The interest of various regions like north, south, eastern, northeastern, and so on. Look at the Rajya Sabha, right? Rajya Sabha, right? Rajya Sabha represents the interest of states. What Rajya Sabha represents? Rajya Sabha represents the interest of the states. So Rajya Sabha के मेंबर आप देखेंगे कि कहां से आते हैं? स्टेट के लेजिस्लेचर से चुन के आते हैं. स्टेट, आपको पता है कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, वो अपने मेंबर वहां से मेंबर आते हैं, और राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेचर से आते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितना है किस स्टेट का, राइट? फॉर एग्जांपल यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी हैज 31 सीट्स इन द राज्यसभा, whereas गोवा हैज 1, सिक्किम हैज 1, राइट? ठीक है, तो अलग अलग वेरिएशन है. लोकसभा में डायरेक्टली लोग आते हैं चुन करके, राइट? और लोकसभा के मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के इंटरेस्ट को. सो पार्लियामेंट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ, फर्स्ट इज institution of representation. It represents the interest of various interests, I say, the interest of region, interest of various states, and so on and so forth. And therefore one we recognized कि parliament एक public institution है जो representation का institution है. Now secondly, parliament is also an institution of deliberation. Right? Parliament is also an institution of deliberation. What do you mean by deliberation? Deliberation means discussion, contemplation, debate. Parliament discusses local, regional, state-wise, international, national, every issue. पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट इज ए डेलिबरेटिव बॉडी. इट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेलिबरेशन. पार्लियामेंट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ डेलिबरेशन. ये डिस्कशन करता है, ये बहस करता है. किस पे? ये बहस करता है किसी भी लोकल इश्यूज पे, किसी भी रीजनल इश्यूज पे. लाइक फॉर एग्जांपल मणिपुर में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, तो मणिपुर को लेकर के बहुत सारे डिबेट हुए हैं. या मान लो कोई जीएसटी का मामला हो, उसको लेकर के बहुत डिबेट हुए हैं, या कोई दूसरा मामला हो उसको लेकर के बहुत डिबेट हुए हैं, या ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर के यहां पर डिबेट हुए हैं, या वेस्ट एशिया की पॉलिसी क्या है इंडिया की, उसको लेकर के डिबेट हुए हैं, या इंडिया का क्या पोजीशन है यूक्रेन रशिया वार को लेकर के, उस पर डिबेट हुए हैं. सो पार्लियामेंट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ डेलिबरेशन. Now third, parliament is a public institution of, right, financial management. Financial मैनेजमेंट. बोलोगे किस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है? ये करता है भाई पूरा का पूरा जो बजट पास करा तो वो फाइनेंशियल है. फाइनेंशियल रेगुलेशन काफी हाई है पार्लियामेंट का.
किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जाएगा, राइट, कितना फंड एलोकेशन होगा, कुछ ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, सारा काम ये करता है। पूरा का जो पूरा बजट सेशन है जो फरवरी से शुरू होता है और मई तक चलता है, राइट, तो ये जो बजट सेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एलोकेटेड है, right? So parliament is a public institution of financial management. Now if you look at next, right, parliament is a public institution of representation, deliberation, financial management and law making. law भी तो बनाता है, right? So parliament is an institution of law making. It is the highest institution of law making. कानून बनाने का सबसे बड़ा जो संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है देश में, वो पार्लियामेंट है। और आज तक पार्लियामेंट ने करीब करीब 4-5 हजार के आसपास लॉ बनाए हैं, 4000 के आसपास, राइट। ये अलग अलग तरीके के लॉ है। ऑर्डिनरी लॉ भी है, स्पेशल लॉ भी है, फाइनेंस से रिलेटेड लॉ भी है, टैक्स से रिलेटेड लॉ भी है, राइट। तो सारे, इट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट, ठीक है। ये लॉ बनाता है। अच्छा, किस पे लॉ बनाता है? ऑफ कोर्स आपको पता है कि यूनियन लिस्ट में कोई भी मैटर हो उस पे एक्सक्लूसिव है पार्लियामेंट के पास, वो लॉ बनाएगा। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट पे भी लॉ बनाता है, राइट। और स्पेशल कंडीशन में जो स्टेट लिस्ट है उस पे भी लॉ बना सकता है, राइट, बशर्ते कि राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन लागू करके बताए कि ठीक है आप बनाइए, कानून बनाइए, तो स्टेट लिस्ट पे भी बना सकता है, राइट। बट जनरली ये किस पे बनाता है? ये स्टेट लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाता है, राइट। सो पार्लियामेंट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, right, of law making. Now look at parliament is also a public institution of accountability. Accountability, बोलो ये सर समझ नहीं आया, ये क्या बात है? How parliament is an institution of public accountability. So my dear, if you remember article 75 of the Indian Constitution, right, it has several clauses. One of the clause of article 75 says that the council of ministers shall be collectively responsible to the lower house. लोअर हाउस, इसका क्या मतलब है? जो सरकार है ना, वो पार्लियामेंट, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है। तो भाई पार्लियामेंट किस तरह से, हाउ पार्लियामेंट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी? अब सवाल ये आ जाएगा कि जब आर्टिकल 75 ये कहती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस पर्टिकुलर and to the parliament in general, then how parliament ensures accountability? This is a question. How parliament ensures accountability of the government? ये बड़ा एक क्वेश्चन है, सवाल है कि कैसे पार्लियामेंट इंश्योर करता है सरकार की अकाउंटेबिलिटी। आइए देखते हैं किस तरह से करता है, राइट। नो पहला, अगर आप देखेंगे कि पहला, राइट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको पता है ये क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया तो गवर्नमेंट हैज टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा,
and if government is unable to do so, then the government will fail, or government, the prime minister has to resign. राइट ऐसा हुआ है वाजपेयी टाइम पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाए थे और उन्हें रिजाइन देना पड़ा था. सो दिस इज अ फर्स्ट मेजर. अच्छा, हु बेसिकली इंट्रोड्यूसेस नो कॉन्फिडेंस मोशन? ऑफ कोर्स इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अपोजिशन पार्टी when it believes that the government, right, or the prime minister has no full confidence of the Lok Sabha. और ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता है. क्यों नहीं राज्यसभा में होता है? क्योंकि सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है. द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा इन पर्टिकुलर. राइट? सो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. हमेशा कहां यूज होता है? हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है. और जब ये पास हो गया यानी सरकार गिर गई. इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, नाउ द एंटायर गवर्नमेंट कोलैप्सेस. The entire government collapses. Right? Now second is the opposition. The opposition. Now how opposition ensures accountability? अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है कौन इंट्रोड्यूस करता है? तो ये हमेशा अपोजिशन के जो लोग हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, अपोजिशन के वाले हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा द अपोजिशन आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, ड्यूरिंग द जीरो आवर. राइट? द अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट. द अपोजिशन पार्टी provides alternative policies to the government. It reveals loopholes in the government. Right? We need a strong opposition for a strong and vibrant democracy. In absence of strong opposition, we cannot have very much a strong and vibrant democracy. Right? So opposition ensures accountability. How? Now through the asking question. Right? During the question hour, during the zero hour, or criticizing government outside of the parliament or within the parliament. Right? Criticizing government policies and programs, providing alternatives, criticizing budget. So opposition has a very important role in parliamentary democracy. Right? So if you look at, the opposition ensures accountability of the government. Now third, if you look at parliamentary proceedings. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. राइट? आपको पता होगा कि भाई क्वेश्चन आवर होता है, जीरो आवर होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, राइट, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, बहुत सारे मोशंस होते हैं. एंड थ्रू दिस मोशन द पार्लियामेंट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. Right? So this is the whether question hour, zero hour, calling attention motion, and other motion, other parliamentary devices are used, right, to ensure accountability of the government. Right? Now next is parliamentary committee. पार्लियामेंट्री कमेटी. अब पूछोगे सर पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है, पहले ये बता दो. व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमेटी? नाउ लुक एट, पार्लियामेंट हैज एनॉर्मस टास्क. बहुत ज्यादा काम होता है इसके पास. तो क्या करते हैं कि जो पार्लियामेंट में लोकसभा हो या राज्यसभा हो या दोनों मिलाकर के भी बनता है कि कुछ एमपीज को मिलाकर के एक ग्रुप बना देते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप को कुछ टास्क दे दिया जाता है कि आप इसको देखें,
आप इसको देखें, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमिटी. व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटी? राइट, अ ग्रुप ऑफ MPs assigned with particular task, assigned with particular task. उनको प्रॉपर, जैसे शादी ब्याह में होता है ना, राइट, इन मैरिजेस, smaller group we divide and then give them a proper task, right? Whether they manage the pandal or whether they manage the wedding, whether they manage the transportation system and so on so forth. यहाँ पर भी पार्लियामेंट में कुछ ग्रुप ऑफ एमपी को बना दिया जाता है और पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर अपने आप काम करते हैं. अब बोलोगे सर पार्लियामेंट्री कमेटी होता कितने तरीके का? तो जनरली दो तरीके के होते हैं. एक होता है स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग पीसी, यानी कि ये परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है. कुछ कमेटी परमानेंट होती है पार्लियामेंट के अंदर, हमेशा रहती है और हर साल काम होता है, हर साल काम करते हैं वो लोग. बट कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी. एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है कि जब कोई काम आ गया, अचानक से आ गया, जैसे कोविड-19 आ गई, अब कोविड-19 से किस तरह से निपटा जाए, हाउ टू डील विद कोविड-19, देन the parliament can make an ad hoc committee, right? And if the work is done by the committee, this ad hoc committee dissolves on its own. काम खत्म हो जाने के बाद ये खत्म हो जाता है. तो स्टैंडिंग कमेटी होती है. अब स्टैंडिंग कमेटी में क्या क्या होता है? स्टैंडिंग कमेटी में राइट आप देखेंगे कि बहुत तरह की कमेटी होती है. एक होता है कमेटी जो फाइनेंस का काम देखती है, राइट. ऐसे तीन कमेटी होती हैं. तीन कमेटी होती है जो पैसे को लेकर के देखती है, पैसे का काम देखती है, जिसको पहले को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी. दूसरे बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी. तीसरा बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. राइट. अब ये कमिटी होती है. उसके बाद और भी कमिटी होती है जिसका नाम है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी. इस तरह के 24 कमिटी है पार्लियामेंट के अंदर जो काम करती है और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे. जैसे डिफेंस में अलग एक कमिटी है, 21 लोग होते हैं इस कमिटी में, सॉरी 31 लोग होते हैं, राइट. लॉ के लिए अलग है. तो हर एक डिपार्टमेंट 24 है टोटल, राइट. उसके बाद और भी कमेटी होती है जिसका है कमिटी ऑन SC/ST है, कमिटी ऑन वुमेन है, कमिटी ऑन लाइब्रेरी है, राइट. बहुत सारी कमेटी होती है. और ये कमेटी तो होती है, पर ये काम क्या करती है, ये किस तरह से पार्लियामेंट के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है. तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के कमेटी को किस तरह से इंश्योर करती है. मैं बताता हूं आपको ये काम क्या करती है. ये बहुत सारा काम करती है, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी अगर बिल है तो बिल वैसे पास नहीं होता है. कोई भी अगर बिल है, मान लो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वह बिल कहां चला जाता है? वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है. और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है? पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटिनाइजेस द बिल. वो इसको बिल को एग्जामिन करता है, वो बिल को देखता है कि इस बिल में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, राइट. और फिर वापस एक रिपोर्ट भेजता है हाउस में. इस तरह पार्लियामेंट को हेल्प करता है. दूसरा, जब बजट बनता है ना तो डिमांड डीजी होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है. और इस डीजी मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक अलोकेशन होता है, इतना पैसा मिलेगा, उसको भी स्क्रूटिनाइज करता है, राइट. उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का काम देखता है वो, अपने डिपार्टमेंट का DRSC जो मैंने आपको बताया. इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करता है? इट इंश्योर्स द वर्क ऑफ द राइट द गवर्नमेंट. जैसे एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है. पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है? जो कैग का रिपोर्ट होना है, आपको पता है कैग का रिपोर्ट, कैग हमारे यहां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
एक रिपोर्ट सबमिट करती है हर एक साल प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में डालते हैं और पार्लियामेंट में जाने के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करती है। एंड दिस द वे दैट दिस पार्लियामेंट्री कमिटी ensures accountability. So this is something interesting facts about and theme about parliamentary committee and the parliament. Rest I'll tell you sometimes later. See you.